everybody can speak publicly. Not everybody is confident to even in a conversation to express the viewpoints. And if you look around the world, there are people who are oppressed who are not even able to do that. And the only way we know what is happening in their surroundings, in their environment, whether it's through poverty, whether it's through war, is about the written communication that comes out from there. And certainly now through social media, we can access that 24 hours of the day. So I think writing is becoming even more and more important. The second reason is actually writing is inextricably linked to reading. And reading actually is, from my point of view, and I'll give you a reason why, is not given that much importance in the South Asian communities, certainly in the Pakistani and Bangladeshi diaspora. 99% of the children are from Pakistani and Bangladeshi diaspora. When they come into nursery and reception, we expect them to have English as a second language, and we don't expect them to be fluent in English. Our religion started with the first thing, Iqra Bismi Rabbika Alladhi Khalaq. I can give a very short example. If there are 1,000 people in one event, we have only 10 people who belongs to the writing profession. Our youngsters, our kids need to do writing, poetry, literature, books, and about science, technology. And I would be surprised if they highlight our community people, such as I did 2 people this year, the mayor of Oldham and mayor of Hindwell. I just highlighted their services, what they did to the community, their visits they made to the community. तो क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप हो रही है, तखरीक का अमल है, वो आपके अंदर अल्लाह ताला ने उसको रखा हो, इसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल कोशिश से सब कुछ बन जाता है आदमी। जब बच्चा पैदा होता है तो माएँ कहती हैं बेटे तुम डॉक्टर बन जाना, तुम इंजीनियर बन जाना, तुम बड़े बड़े ओहदे जो माओ की नज़र में होते हैं या वालिदैन की नज़र में होते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बेटे या बेटी तुम राइटर भी बन जाना। तो ये क्योंकि ये बनना बहुत मुश्किल है हकीकतन, ये कुछ ना कुछ अंदर ज़रूर होता है। बहरहाल ज़माना बहुत बड़ा उस्ताद है, ज़माना भी सिखा देता है, ज़माना सिखा देता है अगर आप लिखना चाहते हैं। So, अपने कल्चर को, अपनी ज़ुबान को याद रखना, उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। If you want to understand somebody, if you want to know somebody well, listen to what they have to say. And if you really want to know them, read what they have got to write. So जब आदमी कोई लिखता है तो लिखना एक बड़ी एक जिम्मेदारी का काम होता है। बड़ी जिम्मेदारी से इंसान लफ्ज़ का चुनाव करता है। इनकी एक एफर्ट जो ये शुरू इन्होंने की है, एक बड़ी अच्छी एक एफर्ट है। मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने एक इमिग्रेंट्स बुक लिखी है, उसके अलावा फिर इमिग्रेंट्स के ऊपर जो एक ये हिस्टोरियन का एक रोल प्ले कर रहे हैं। I think for immigration, हम लोग जो पाकिस्तान से सब लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आके वो लोग हम लोगों ने मेहनत की, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया, इंटीग्रेशन इस सोसाइटी में जो हमारी है, जो हमारे इस माशरे में हमारा एक हिस्सा है, उसको ये हाईलाइट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली एक ऑथर जब कुछ लिखता है और वो हिस्ट्री की बुक एक हिस्ट्री के तौर पे जब हमारे आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो उसको पढ़ेगी तो उनको ये याद रखेंगे कि यहाँ पे हमारे जो बड़े हमारे बाप हमारे दादा जो आए थे उन्होंने किसका स्ट्रगल की और उन्होंने क्या कोशिशें की इस माशरे के लिए, इस माशरे में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन की, तो शायद उससे उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा। नौजवान हैं और इन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि वो उर्दू, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज में वो किताब लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं, वो हमारी आइंदा जनरेशन के लिए एक अहम इम्पोर्टेंट रोल है कि लिखना एक आर्ट है। अगर आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है और आप कलम कागज लेके बैठ जाएंगे तो आपके जहन से चीजें उड़ती चली जाएंगी और आप लिख लेंगे। And I think that one of the most important things that anybody living in another culture needs to do is write the language, and I think that's already been said. Because writing is so important to everybody. If you think that language changes, if you look at one of our greatest writers, which was Shakespeare, if you try to read Shakespeare, and I say try, it's in an archaic language. It is English, but it doesn't seem like English when you try to read it. And that's the importance of writing. It doesn't
change. It's one of the reasons the Quran should never be adopted or adapted or changed, because that is the word of God and it should stay exactly as it was. But otherwise, if it was word of mouth, it would change as language changes. And that's the importance of writing. Set your paragraphs. If you're writing 4 paragraphs on one page or 4 lines in each paragraph, then you must look onto your paragraphs and outline the grounds, mean the theory, what you're putting inside this paragraph, what the story you're explaining in the first paragraph, second paragraph, third paragraph. And must make sure these all paragraphs are attached to each other. Make suspense at the end of each paragraph so that the reader can go on the next paragraph. मुख्तसर सी बात करूंगा कि चीनी ज़ुबान में एक कहावत है, और वो कहावत ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए, यानी आपको हयात जावेदा अगर मिल जाए, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि या तो आप एक दरख्त लगा दें या एक किताब लिख दें। जिस तरह से एक दरख्त दूसरी नस्लों तक अपना फैज़ पहुंचाता है, अपना फल, अपना साया, और फिर उस बीज से बेशुमार दरख्त बनते हैं, इसी तरीके से किताब जो है, किताब ये लाइब्रेरियों की जीनत बनती है, ये दिलो दिमाग की जीनत बनती है, और आइंदा नस्लों तक आप पैगाम मुंतकिल करके आइंदा नस्लों में आप जिंदा रहते हैं। कोई भी किताब जिनको लिखाई जाती है या जो लिखते हैं, इसका फायदा एक तो ये है कि लिखने वाले को होता है, उसका नाम भी रह जाता है, लेकिन उसका जो मनफत है वो पढ़ने वालों को भी होती है, और देर तक जो उसके साथ वाबस्ता रहते हैं वो भी उससे इस्तिफादा हासिल करते हैं। और फिर ज़ात ही को ज़ात से बाहर रखा, पाँव रखा भी तो औकात से बाहर रखा, जिंदगी देर तलक करने की ख्वाहिश रखी और जीने का हुनर हाथ से बाहर रखा। कि हम भी इमिग्रेट हैं, हम यहाँ आए थे, मगर हमने अपना कोई बायोग्राफी कुछ नहीं लिखा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये काम हो, इससे बेहतर है कि हम लोगों को भी फायदा होगा, हमारी कम्युनिटी को भी फायदा होगा, और इससे बच्चों की जो तालीम तरबियत जो है, हमारे बच्चे ये देखेंगे कि हमने कितनी मेहनत की है यहाँ पे। अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जो इसने बुक की शक्ल में एक तस्वीर देकर उसे कम्युनिटी के लिए एक असासा छोड़ दिया है, कि जिससे ये फायदा होगा कि लोग अपने दूसरों को भी अपना दर्द करेंगे, हमारी भी लोग पूछेंगे हमने आके यहाँ क्या किया। और बहुत खुशी होती है देख के कि आप अपना, ये भी एक कम्युनिटी की खिदमत है जो आप कर रहे हैं, जो अपना मैसेज अपना लेकर आप चले हैं। और खुशी ये भी होती है कि आपने, पहले बात यही है कि अगर आप इफ यू एम हायर एंड वर्क हार्ड यू कैन अचीव योर गोल्स। हम नहीं आते तो एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज, अंकल नसार आए हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नसर एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर यूनुस परवाज साहब एंड बारिया खान for being so productive, so supportive, very active. Wherever I went, they are always with me. They are like my family, and I'm so proud to have such people in my life. There are a few thanks to the right media. hand and left hand, eh? One is right, one is left, and all of them are in the middle. So we can see people with 6 eyes. Thank you so much. There are some thanks to Urdu Times, जो हमारे हर इवेंट को पब्लिश करते हैं. The Nation London, ये लंदन से पेपर है, ये भी हमारे हर इवेंट को हाफ पेज कवरेज देते हैं. The Daily Jang and Gio, thank you so much once again. Daily Park News, Daily Gujar Khan Today, इनका हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन है. हमारे हर इवेंट के एडवर्टाइज भी करते हैं और उसको इवेंट के बाद जो है वो भी पब्लिश करते हैं. एंड वेरी बिग न्यूज लाइक 3 to 4 pages पब्लिश, एंड जितनी उनको फोटो भेजे उन्होंने कभी इनकार नहीं, कहते हैं जो आप भेज दो आप हम बता देंगे. फरुखाबाद अपडेट्स है, रोजनामा पाकिस्तान है, न्यूज इंटरनेशनल है, जियो उर्दू है, डेली पुकार इंटरनेशनल है, इनकलाब 24 है, खबरें मैनचेस्टर है, डेली कायनात, यूनिवर्सल उर्दू, उर्दू नेट जापान, खबरें मैनचेस्टर. खान साहब किधर चले गए? खान साहब चले गए क्योंकि उनकी एक अपॉइंटमेंट थी, तो मुझे उन्होंने कहा था कि